Hello, my dear subscribers and my dear students. Today I selected chapter biomolecule. Some important questions from biomolecule. Okay, so let us see and try to understand and learn it. तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन इन ए प्लांट और एनिमल टिश्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू लेते हैं। लिविंग टिश्यू ए वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर, हम कोई सा भी ले सकते हैं। ग्राइंडेड इन ए ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड में ग्राइंडेड करेंगे। And a thick slurry is strained through a cheesecloth of often filtrate the acid soluble pool, उसे हम कहते हैं acid soluble pool, and retinate. The acid insoluble fraction is called retinate. Now various separation techniques are used for separating the compound from the filtrate. तो जितना भी जो कुछ हम लेते हैं वो सब फिल्ट्रेट से तैयार करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक टिश्यू ले लिया। वो टिश्यू लीवर सेल्स भी हो सकती हैं, वेजिटेबल सेल्स भी हो सकती हैं। उन्हें ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड में डालकर मोटार एंड पिस्टल से एक स्लरी बनाते हैं और उससे हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं, एक कहलाता है फिल्ट्रेट और एक कहलाता है रेटिनेट। जो फिल्ट्रेट है वो एसिड सोल्यूबल पूल कहलाता है और रेटिनेट जो है वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कहलाता है। तो जो कुछ भी केमिकल एनालिसिस की जाती है वो हम करते हैं फिल्ट्रेट से, यानी वेरियस सेपरेटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपाउंड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। All the carbon compounds we derive from the living tissue are called biomolecule. ये biomolecule की definition हो गई। All the carbon compound we derive from the living tissue are called biomolecule. When fatty acid combine with glycerol, they form ester known as glycerides. Some lipids have phosphorus and phospholipids in cell membrane. यहाँ था एग्जाम में लेसिथिल। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोलिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन लेसिथिन। कार्बन कंपाउंड विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग सच एज एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन आर नाइट्रोजनस बेस। When carbon compounds with heterocyclic rings are attached to sugar is called nucleoside. इसके एग्जाम्पल है एडिनोसाइन एंड थाइमिडीन। Nucleotide makeup of nucleic acid, DNA and RNA. Silicon is the element negligible in human body. Silicon एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। मेटाबोलाइट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 1000s of the organic compounds in including amino acids, sugar. These are required for their primary metabolic process like photosynthesis, respiration, lipid and protein metabolism. These are called primary metabolites. Okay, तो ये तो हमने primary metabolites देखे। Many plants, fungi and microbes synthesize a number of organic compounds, biomolecule, which are not involved in primary metabolism and seen to have no direct function in growth and development of the organism. Such compound are called secondary metabolites. उन्हीं को हम secondary metabolites कहते हैं। secondary metabolites के एग्जाम्पल हैं जैसे alkaloid, oil, toxins, lecithin, drugs, polymer. Now bio macromolecule and micromolecule, इसमें क्या होता है, the acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds like protein, nucleic acid, lipids and polysaccharides are called biomacromolecule. The molecular weight of biomacromolecule is more than 10,000 Dalton and lipid is the exception of it.
इसी तरीके से हम देखें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दीज आर दोज बायो मॉलिक्यूल विच हैव ए molecular weight is less than 10,000 Dalton. It include the primary and secondary metabolites and the molecular weight is ranging between 18 to 800 Dalton. तो इसी को हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिकुलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में आता है उन्हें हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, they are linear chain of amino acids linked by peptide bonds. There are 20 types of amino acids and so a protein is a heteropolymer. Amino acid essential completed by diet and non-essential formed in our body. कुछ अमीनो एसिड्स अपनी डाइट से हम लेते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हमने रुबिस्को को देखा। इसके बाद कोलेजन जो होते हैं वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कहलाते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शंस एजेंट्स होते हैं, रिसेप्टर स्मेल टेस्ट हार्मोन्स होते हैं। GLUT4 ये बहुत पूछते हैं, इट एनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। GLUT4 ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में ग्लूकोज को पहुंचाने में हेल्प करता है। नाउ पॉलीसैकेराइड, दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। स्टार्च इज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। इट फॉर्म्स द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कैन होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, सो इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ये पूछते हैं कि आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो वो ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल में हेलिकल पोर्शन होता है जो आयोडीन के मॉलिक्यूल को हेलिकल पोर्शन होता है। ठीक है, आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। जो देखें दोबारा से, स्टार्च इज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जो स्टार्च होता है वो स्टोर होता है। इट फॉर्म्स द हेलिकल स्ट्रक्चर एंड कैन होल्ड आयोडीन। स्टार्च के अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है इन हेलिकल पोर्शन में, सो इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इट डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, हैंस इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। तो सेल्यूलोज जो होता है वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, सो इट ब्लू कलर इज नॉट फॉर्म्ड। तो अगर हम सेल्यूलोज पर आयोडीन डालेंगे तो वहाँ ब्लू कलर इसीलिए नहीं बनता है। बहुत अच्छा टॉपिक था। काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड। इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स। तो जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं उन सबका स्केलेटन बनाता है काइटिन। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द लिविंग टिश्यू। दीज आर ऑफ टू टाइप, जैसे हम देख रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होता है जिसका एग्जाम्पल है एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन में 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। Purine have 6 members and 5 member nitrogen containing rings fused togetherly. Pyrimidine have only 6 member nitrogen containing rings. प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की हम देखें बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होती हैं। तो सबसे पहले देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड N-terminal
एंड अमीनो एसिड्स, एंड लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल। तो ये स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट हैज़ ए पॉलीपेप्टाइड चेन विच अंडरगोज कॉइलिंग बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट हैंडेड हेलिकल्स आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन इन हेयर एंड नेल। नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर, इट हैज़ ए लॉन्ग प्रोटीन चेन like a hollow woolen wall. This is tertiary structure and इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन Now quaternary structure, it has 4 helical polypeptide chain, 2 alpha chain and 2 beta chain। तो ये बहुत पूछते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कितनी चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ह्यूमन हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल हो गया क्वार्टनरी का। द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्स द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। दोबारा सुने, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ओके, बैकबोन। तो जो डीएनए स्ट्रैंड बनाने में जो मेन बॉन्ड होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। एनाबॉलिक पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, ये कहलाता है एनाबॉलिक पाथवे। नाउ कैटाबॉलिक पाथवे, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना कैटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। एटीपी डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोहमैन from muscles and father of ATP cycle is Fritz Lipman। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है एंजाइम, बायो कैटलिस्ट ऑल आर प्रोटीन। एक राइबो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो प्रोटीन नहीं होता। दैट बिहेव लाइक एन एंजाइम, इट इज़ नॉट, राइबो एंजाइम इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम हैज़ प्राइमरी, secondary and tertiary structure. Enzyme lower the activation energy of the reaction। एंजाइम जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा कम करता है, ये बहुत पूछते हैं। इसके बाद आता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर फाइनली एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो वेयर E इज द एंजाइम, S इज द सबस्ट्रेट एंड P इज द प्रोडक्ट। ये लॉक एंड की थ्योरी थी, फिशर की दी हुई। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी पर जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर में आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। दूसरा पीएच, ऑप्टिमम पीएच होना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जितनी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन। इसके बाद हम देखें एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन, when the binding of chemical shuts off the enzyme activity, the process is called inhibition and chemical is called inhibitor। इसके बाद आता है competitive inhibitor, inhibition closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the enzymatic activity is called competitive inhibition। इसका एग्जाम्पल बहुत आता है, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेल by malonate which closely resembles the substrate succinate in structure। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम देखें बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेस, ऐसे एंजाइम जो रिडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म करें। इट कैटेलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट, उन्हें कहते हैं हम ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसके बाद आता है ट्रांसफेरेज, इट कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। Hydrolysis, it catalyzes the hydrolysis of ester, ether, peptide and glycosidic and C and C bond, P and N bonds। Lysasis, it catalyzes removal
of groups by hydrolysis. आइसोमेरेज में आता है, हम देखें आइसोमेरेज में आइसोमेरिज्म लाइक ऑप्टिमल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर. लाइगेजेस इट कैटेलाइज द लिंकेज टुगेदर द टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड लाइगेजेस. देखते हैं अब now next topic is cofactor. Non-protein constituents binds to enzyme to make the catalytically active is called cofactor. Protein porins of enzyme is called apoenzyme. Cofactors are of three type. तीन टाइप के होते हैं. Prosthetic group. These are the organic compound tightly bound to apoenzyme is called prosthetic group. इसका एग्जाम्पल है जैसे हीम in peroxidase and catalases with catalyze the breakdown of H2 to हाइड्रोजन peroxide का ब्रेकडाउन करता है. सेकंड है कोफैक्टर का एग्जाम्पल कोएंजाइम. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बाइंड टू द एंजाइम. जैसे एग्जाम्पल है विटामिन्स हो गया NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन. इसके बाद आते हैं मेटल आयन. इसका एग्जाम्पल है जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज. तो अगर जिंक जो है कोफैक्टर की तरह काम करता है जिसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम को बनाने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है. 90% ऑफ द लिविंग बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ 6 एलिमेंट्स. वो 6 एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये बहुत आता है. RNA हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. RNA हैज़ 5' phosphoryl and 3' hydroxyl and heterocyclic nitrogenous base. RNA does not follow the Chargaff rule. RNA जो है वो चारगॉफ रूल को फॉलो नहीं करता जैसे DNA फॉलो करता है. The chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerization of N-acetyl glucosamine. Properties of starch useful in storage material are chemically non-reactive and osmotically inactive. Now correct statement with reference to enzyme. Holoenzyme is equal to apoenzyme plus coenzyme. तो हैपोएंजाइम जो है वो प्रोटीनियस पार्ट है एंड कोएंजाइम इज ए नॉन प्रोटीनियस पार्ट है. इन दोनों के कंबाइन होने से बनता है होलोएंजाइम. ए नॉन प्रोटीन एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम. ये बहुत पूछते हैं ऐसे एक प्रोटीन का नाम बताइए जो ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो प्रोटीन नेचर का नहीं होता है. राइबोजाइम. Next, a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is malonate. अब हम समझते हैं कि होलोजाइम क्या होते हैं. It is a complete functional enzyme which is catalytically active. Holozyme is equal to apoenzyme plus cofactor. होलोएंजाइम का एग्जाम्पल है जैसे DNA polymerase थर्ड एंड RNA polymerase. इसके बाद आता है apoenzyme. It is a enzymatically active protein part of enzyme which requires a cofactor for its activity. All enzymes that do not require any cofactor are known as a simple enzyme जैसे pepsin and trypsin. Essential compounds of many coenzyme is vitamin.
X is lipoprotein which increase the chance of coronary thrombosis, वो है LDL। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है LDL और साथ में VLDL, इसे कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड और दूसरा है लो डेंसिटी लिपिड। बायोमोलिक्यूल हैव ए मॉलिकुलर मास, जिसमें 18 से 800 डाल्टन के बीच में बायो माइक्रोमोलिक्यूल का जो है मॉलिकुलर मास होता है। लिपिड हैव ए मॉलिकुलर मास ऑफ लेस देन 800 डाल्टन। लिपिड ही एक ऐसे हैं मॉलिक्यूल जिसका मॉलिकुलर मास 800 डाल्टन से कम होता है। प्रोटीन विद एक्सेसिव स्वीटनेस इज ब्रेजीन, थ्यूमेटिन एंड मोनेलिन। विद आयोडीन ग्लाइकोजन टर्न्स रेड एंड वायलेट कलर में बदल जाता है। आयोडीन के साथ अगर हम ग्लाइकोजन को रिएक्ट कराएं, द टर्म एंजाइम वॉज क्वाइंड बाई खुने। खुने ने एंजाइम की टर्म दी थी। साइनाइड इनहिबिट्स द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाई कंबाइनिंग irreversibility with copper. Basic structure of protein was given by Sanger. Steroid hormone is derived from cholesterol. जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called coenzyme. वैक्स क्या है? वैक्स एक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है या ईस्टर है, तो हम कहेंगे ईस्टर। Most of the enzyme contain a non-protein part is called cofactor. Prostaglandin क्या है? फैटी एसिड्स होते हैं। Which one is the sweetest sugar? इसमें सब बताना है सबसे ज़्यादा मीठी शुगर कौन सी है। सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है? आंसर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज 2 times more sweet than सुक्रोज। याद रखें, फ्रक्टोज जो होती है वो सुक्रोज से 2 गुना ज़्यादा मीठी होती है। Which of the following fat is least harmful for heart? सबसे कम नुकसानदायक जो है कौन सा फैट होता है? पॉली अनसेचुरेटेड फैट। इसके बाद आता है स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। IAA जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं एंड सेरोटोनिन आर ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हम कहेंगे ट्रिप्टोफैन। कौन सा अमीनो एसिड बनाता है ग्रोथ हार्मोन को? सेरोटोनिन को ट्रिप्टोफैन। द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP इज? कितनी एनर्जी बनती है ATP के टूटने से ADP में बदलने में? 7300 कैलोरी पर मोल। ADP कंटेन 1 हाई एनर्जी बॉन्ड। टेबल शुगर इज सुक्रोज। टेबल शुगर कौन सी कहलाती है? सुक्रोज। एंड टेबल सॉल्ट कौन सा कहलाता है? जैसे NaCl। द नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन एडल्ट ह्यूमन इज 8। इसका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर द प्रोटीन्स दैट शो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था हीमोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। विच अमीनो एसिड्स कंटेन सल्फर इन इट्स साइड चेन? बहुत आता है एग्जाम में। मिथियोनाइन। हाउ मैनी interlocking rings are in the carbon atoms arranged in a steroid molecule? Answer is 4. Coenzyme NAD and NADP contain the vitamins niacin. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। niacin. And which scientist discovered the triple helical structure of collagen? G.N. Ramchandran. Okay, the polypeptide subunits present in the adult human hemoglobin contains 2 alpha and 2 beta subunits. Which of the following rules states that with the increase of every 10% degree Celsius temperature the rate of metabolic activity gets doubled? ये रूल था Van't Hoff rule. The enzyme purified and crystallized for the first time was urease. वो एंजाइम है urease.
सबसे पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो यूरिएज। बॉन्ड बिटवीन टू रेजिड्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाते हैं। एंड विच प्रोटीन इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ जीनोम, P53। Which marine fish having rich source of omega-3 fatty acids? इसका आंसर है मैकेरल। Riboenzyme is a nucleic acid and the two functional groups characteristics of sugar are carbonyl and hydroxyl। तो इसी के साथ हमारे बायोमोलिक्यूल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने तैयार किए और मैं समझता हूँ कि आप लोग इससे तैयारी करोगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू अगेन। ओके नाउ यहीं पर हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं।